Welcome students. My name is Tarun Sasdeva. This is my lecture 9th on basic element of mechanical engineering. Till now we have discussed about the thermodynamics. What is thermodynamics? Its system surrounding and type of systems, and based on that we have also studied the first law of thermodynamics for closed system and open system, and we have also done some numericals problems on the based of first law of thermodynamics for closed system and open system. So अभी तक हमें इतना आइडिया हो गया है कि हमें कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी प्रोसेस और साइकिल कैसे उस लॉ को ओबे करके, कैसे उस लॉ को का पालन करके उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और साइकिल को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है तो वो विदाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पालन किए वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोसेस टू अकर इन नेचर so that it can satisfy the first law of thermodynamics. So till now we have studied about the first law of thermodynamics and its applications. Today we are going to discuss the second law of thermodynamics, which is very important law, and it basically tells beyond the first law of thermodynamics that if process will occur in nature, so how it can proceed or what in what direction it can proceed, so that the second law of thermodynamics will tell you. So that is what we are going to understand today. Today's lecture is very important in the respect of concept for second law of thermodynamics. It is uh, very important to understand that the the aspect of second law of thermodynamics is basically depends upon the another criteria that for a process, if a process is to be occur in the nature, then it should satisfy the second law of thermodynamics also. So we will discuss it later on. uh, before going to start today's lecture, I request you to follow us on Facebook, Twitter, and our YouTube channel. So, as I am discussing about the second law of thermodynamics, which is the topic for today, in this topic, basically, the first question which comes to mind is that why we need the second law of thermodynamics. As we have understood that the energy balance can be done by first law of thermodynamics. So, what is the need of second law? Why we need to study it? That is also a question that if we need to understand second law of thermodynamics, so first we need to understand why we need that. For that, let us consider some situations. And the first photograph as shown in left hand side to you, we have a hot cup of coffee. This coffee is placed in a environment which is at a lower temperature to this. As you well aware of that, this hot coffee in a cold environment will get cooler by virtue of temperature difference. It will reject heat. ओके, सो होता क्या है कि ये जो हॉट कॉफी है, जो कॉफी है, हमारा जो कॉफी मग है, हमने जनरली देखा है जैसी चाय या कॉफी जो कि हम गर्म करके पीने वाले हैं, अगर उसको हम थोड़ी देर एनवायरनमेंट में, हम रूम में बैठे हैं और हमने उस रूम में, उस एनवायरनमेंट में अगर हमने कॉफी को रखा थोड़ी देर के लिए, तो वो धीरे धीरे ठंडी होने लग जाती है। उसका ठंडे होने का रीजन क्या है कि जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर उसके कॉफी के टेम्परेचर से कम होता है। और जैसे ही हमें पता है, ये नेचर का लॉ है, जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा तो हीट जो है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर होने लग जाएगी। सो ये बेसिकली एक नेचुरल लॉ है जो होना ही है ना। हीट को ट्रांसफर होने लग जाता है और हॉट कॉफी जो है वो ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, अब ये चीज जो एक नेचर में एग्जिस्ट करती है,
ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेटिस्फाई करती है। अगर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के नजरिए से देखें कि जो हीट हॉट कॉफी ने जो 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 हीट हॉट कॉफी ने रिजेक्ट की वो कहाँ गई होगी, सराउंडिंग में गई। और सराउंडिंग में अगर हम केयरफुली चेक करें या फिर इसकी क्लोज सराउंडिंग को लें तो इसके अराउंड जो एयर होगी उसकी एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सो जितनी हीट यहां से कॉफी से रिजेक्ट होगी वो कौन एब्जॉर्व करेगा, वो एयर एब्जॉर्व करेगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग हीट और एनर्जी बैलेंस अगर मैं करूंगा तो एनर्जी बैलेंस क्या होगी कि हीट रिजेक्टेड बाय दी हॉट कॉफी विल बी द हीट गेन बाय द एयर। सो ये हीट बैलेंस है ना। और अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि एक तो ये सिनेरियो हो गया है ना, और मैं एक सिनेरियो और देखूं वो ये कि सपोज करो कि मैं इस हॉट कॉफी को एक कूलर रूम में रखता हूं, ठीक है। एक कूलर रूम में, यानी कि कूलर रूम मतलब वो जो रूम है जिस रूम में इसको प्लेस किया गया है उस रूम में का टेम्परेचर इस कॉफी के टेम्परेचर से कम है ना। कॉफी के टेम्परेचर से कम है, टी इंफिनिटी इज लेस देन टी सी। ओके, इन दैट केस क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये हॉट कॉफी और होटर हो जाए और गर्म हो जाए, है ना, इस कूल रूम में। आपको सुनने में ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, इट माइट गेट यू नॉट अ क्लियर पिक्चर दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू absorb you or digest this statement that does the a coffee of a cup of hot coffee get hotter in a cooler room? What does it mean? Basically हमें ये तो जनरल, हमें हमारा ये एक जनरल परसेप्शन है जो मैं आज तक हम देखते आए हैं कि हॉट कॉफी एक कूलर रूम में हमेशा ठंडी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर हीट का जो ट्रांसफर है वो बेसिकली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है ना। सो ये एक डायरेक्शन है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो हॉट कॉफी और हॉट हो जाए एक कूलर रूम में? क्या ऐसा हो सकता है? एक ये सिचुएशन है, एक ये क्वेश्चन। अगेन ये हमारा, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को नहीं भी जानते हो, नहीं भी पढ़ते हो, एक जनरल लेमैन से भी अगर ये पूछें तो वो इसका आंसर क्या देगा? नो, इट कांट बी डन दैट हॉट कॉफी विल गेट more hotter in a cooler room. Okay, so hold this statement. We'll discuss one another statement, another example based on this also. सपोज करिए एक कंटेनर है जिस कंटेनर में कुछ एयर है, इसमें एक पेडल व्हील लगा है। ये पेडल व्हील को हमने वर्क दिया, वी हैव गिवन सम वर्क टू दिस पेडल व्हील एंड दिस pedal, this shaft rotates. Due to the rotation of this shaft, basically what happens, the air will get heated. How? Because this work will goes to what? This will eventually increase the velocity of this air particles. ये जो air particles है ये पेडल क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। एंड ड्यू टू द वेलोसिटी वी नो दैट द वेलोसिटी का जो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ये काइनेमेटिक, ये जो काइनेटिक एनर्जी थ्योरी बेसिकली हमें बताती है कि वेलोसिटी विल इंक्रीज सो द टेम्परेचर ऑफ द एयर विल आल्सो इंक्रीज, है ना। सो क्या है ये जनरली एक ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप इस पेडल व्हील को रोटेट करेंगे, इसको वर्क प्रोवाइड करेंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्क, क्या होगा, वो इस एयर को हीट करेगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग अगर ये हीट एनवायरमेंट में नहीं डिसिपेट हो रही है और फ्रिक्शन हमारा जो वर्क है, जितना वर्क हम कर रहे हैं वो टोटल वर्क हीट में जा रहा है, देन W विल बी इक्वल टू Q। ये कौन बताएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या करता हूं, इसका उल्टा करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं
कि मैं इस एयर को हीट करूंगा, आई वांट टू हीट दिस, मैं इसको हीट करूंगा, मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा, एयर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो क्या ये पेडल व्हील रोटेट करेगा? विल दिस पेडल व्हील रोटेट? और क्या मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा? विल आई गेट द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट? क्या मैं अब हीट को दे करके वर्क को ऑब्टेन कर सकता हूं? इवन दो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, टिल द एनर्जी बैलेंस इज देयर, इट इज पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल है कि आप इसको हीट जितना दें उतना ही वर्क आउटपुट दे, है ना? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग, तो अगर एनर्जी बैलेंस वर्क आउटपुट आपको उतना मिल रहा है, देन इट इज ओके फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये नहीं कहता कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको ये बताता है कि अगर आपने इसको इतनी हीट दी और वर्क आउटपुट इतना हुआ, या फिर और कुछ एनर्जी इंटरेक्शन हुआ, तो इन सब एनर्जी इंटरेक्शन का समीशन इतना होना चाहिए। कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, कोई क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली हॉट कॉफी में, अगर आप हॉट कॉफी को बेसिकली कूलर रूम में, अगर कूलर रूम से उसके अंदर हीट जाए, अगर सपोज, लेट अस सपोज, अभी तक आप इस स्टेटमेंट को क्यों एग्री नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने ऐसा होता नहीं देखा, है ना? लेट अस सपोज, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये जो हीट है वो इसको ट्रांसफर हुई, और इसको जितनी हीट ट्रांसफर हुई होगी, इवेंचुअली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में जाएगी। तो अगर मैं एनर्जी बैलेंस के हिसाब से देखूं, तो हीट गिवन बाय द एयर विल बी द हीट टेकन बाय दी, और हीट गेन बाय दी कॉफी होगा। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये ट्रू होगा अगर एनर्जी बैलेंस सेम है ना? बट ये क्या नेचर में हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि मैं इसको हीट दूं तो ये पेडल घूमेगा? अगेन द आंसर केम टू नो, वी हैव नॉट सीन दिस। व्हाई वी हैव नॉट सीन दिस? बिकॉज इट डजंट हैपन। ओके, तो अभी तक हमने ये देखा कि ये नहीं हो सकता है ना? नेचर में नहीं हो सकता। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं, then we'll conclude why we need the second law of thermodynamics. Okay, let us suppose there is a heater. ये बेसिकली आपने बहुत यूज किया होगा सर्दियों के टाइम पे, है ना? जो एक ठंडे इलाके में रहते हैं, जो एक कूल प्लेस में रहते हैं, वहां पर हीटर का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज वहां पे ठंडी है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है हाई, और टेम्परेचर है लो, तो आप क्या करते हैं? इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। यस, करंट पास होता है, ये रजिस्टर होता है ना? रजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अंडरस्टैंड? सो ये नेचर का एक, नेचर में हम आज तक देखते आए। पर मैं अब ये कहना चाहता हूं कि क्या हम इस मेटल को हीट करें बाय एनी मींस, है ना? बाय एनी मींस मैं इसको हीट कर रहा हूं, सपोज आई वांट टू हीट इट, मैं इसको हीट करने लगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बिकॉज इट्स अ मेटल, टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, इट्स अ प्रॉपर्टी। बट के टेम्परेचर इंक्रीज करने से मुझे करंट मिलेगा? विल आई गेट करंट? विल आई गेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस हीटिंग? सो सुनने में कितना अजीब लग रहा है। दिस विल अगेन, द आंसर केम टू नो। Even though again I am repeating this, based on the first law of thermodynamic, heat given can be equals to Vi। अगर वर्क मिला तो फर्स्ट लॉ ये कहेगा कि बस इसका एनर्जी इक्वल होगा, बट ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फर्स्ट लॉ नहीं कहता। फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना कहता है, अगर ये एनर्जी है देन इट शुड बी इक्वल टू दिस, एनर्जी बैलेंस होना जरूरी है। एनर्जी बैलेंस नहीं होगा देन इट कैन नॉट बी हैपन। ओके, बट ये जो एग्जांपल्स हमने यहां पर देखे, ये सब में क्या कॉमन है? एक नेचर में एक कॉमन चीज है कि जो प्रोसेस अकर हो रहे हैं इन नेचर, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो रहे हैं, है ना? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वी कैन नॉट गेट वर्क आउटपुट, हम पेडल को नहीं घुमा सकते हीट करने पे, हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकते रजिस्टर को हीट करके। So that is why there is a need, why we need second law, because हमें पता चला इन एग्जाम्पल से कि प्रोसेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो वो डायरेक्शन क्या है?
What is that direction? We need to know, because we need to check whether this process which someone is suggesting can occur in the nature or not. Suppose आपको कोई आकर के एक ऐसी डिवाइस दे जाए, suppose let us take an example, let us take an example. Suppose आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, you are unaware of everything. Okay, you are not an engineer, you are a layman, and somebody said that I have a device जिसमें आप क्या, अगर आप उसको हीट करोगे तो आपकी शाफ्ट घूमनी चालू हो जाएगी. सिर्फ आपको क्या करना है, उसको हीट करना है, और हीट करने के बाद वो आपको वर्क देना चालू कर देगी. या फिर आपको एक ऐसा रजिस्टर कोई दे जाए जिसको आप हीट करें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाए. ठीक है. सो अगर ऐसी डिवाइस आपको देनी लग जाए, दे कोई, और आप उसको, आप कैसे जज करेंगे, हाउ कैन यू जज दैट कि ये नेचर में अकर होगा कि नहीं. So that is why this second law came into picture. This second law will give you the explanation why this process can occur, or this process, if I adjust this statement in such a way that कि मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि एक प्रोसेस किस डायरेक्शन में अकर होगा, ये कौन बताएगा, ये सेकंड लॉ बताएगा. ठीक है. सो दैट इज वाई सेकंड लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस है, और सेकंड लॉ हमें बताता है दैट दिस प्रोसेस विल अकर, इफ अकर then in what direction this process can occur. Understand? I will give you another example. We need to understand the concept of basic concept, deep concept of this second law, not the statement. We are not here to just read and memorize the statement of second law. That is very simple. वो बहुत simple है. We can learn that very easily. But we need to understand why somebody has just given second law of thermodynamics. क्या हुआ कि उसको second law of thermodynamics को लिखना पड़ा, इजाद करना पड़ा. ठीक है. अब ये जो हॉट कॉफी है, हॉट कॉफी कूलर रूम में और हॉट होगी या नहीं होगी, है ना. ये जनरल, अगर हमें एक लेमैन में अगर हम इसको समझें तो हमें पता है कि वो कूलर रूम में तो होटर हो नहीं सकती, है ना. सो वी हैव टू गेट सम होटर प्लेस. ओके. सो दैट इज व्हाई द सेकंड लॉ केम इनटू पिक्चर. So it is very clear. It is very clear to have a process, to execute a process, we have to pass the first law of thermodynamics, also second law. So ये जो स्विच है ना, अगर इस प्रोसेस को इधर आना है, इस पॉइंट पे रीच करना है, तो ये स्विच दोनों क्लोज होने चाहिए, तभी ये प्रोसेस अकर हो पाएगा. अदरवाइज इट कैन नॉट अकर इन दी नेचर. Understand? Now, before going into the second law of thermodynamics, the statements of second law of thermodynamics, first there is a small concept, small terminology in the that second law of thermodynamics, that is thermal energy reservoir. Thermal energy reservoir. Basically ये thermal energy reservoirs, और इसको simple reservoirs भी बोला जाता है. ये है क्या? ये अगर मैं टेक्निकली बात करूं, सो बेसिकली एक ऐसे रिजर्वायर्स, एक ऐसी बॉडीज जिनकी थर्मल कैपेसिटी मतलब उस हीट को रखने की कैपेसिटी, उस हीट को एब्जॉर्व करके रखने की या फिर उसको होल्ड करने की कैपेसिटी को हम थर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं. वो कैपेसिटी एक फाइनाइट अमाउंट हो, है ना, और वो कैपेसिटी इतनी हाई हो कि वो कितनी भी हीट ले सकता है, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट ले सकता है विदाउट गोइंग इनटू एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके. सो ये एक ऐसी बॉडी है, सपोज एक बॉडी है ये ए, और आप इसको हीट दे रहे हैं, यू आर गिविंग हीट टू दिस बॉडी, और इसका टेम्परेचर टी है. सो अगर ये बॉडी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, तो ये बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर टी ए will not increase, in case this not increase, or I can say will not change. यहां पे हीट दे रहे हैं तो इंक्रीज ही होगा, है ना. तो ये अगर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, विल नॉट चेंज. सो ऐसी बॉडीज को हम थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का नाम देते हैं. क्लियर? और ये बेसिकली नेचर में अगर हम इसको समझना चाहें,
which what are the examples of these resources, or do they exist in nature? So basically oceans, rivers, lake, okay, boilers, they are termed as आर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स। क्यों? देखिए, आप ओशियन में कितना पानी है ना, तो उसका मास बहुत ज्यादा है। इवन दो दी कैपेसिटी, इस हीट कैपेसिटी को बेसिकली क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, है ना, हमने पढ़ा है, वी नो दैट स्पेसिफिक हीट। तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी कैपेसिटी। सो मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका जो स्पेसिफिक हीट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट विल नॉट अकर, है ना। हम भाई ओशियन को कितनी, सपोज वी हैव गिवन हीट टू दिस ओशियन, है ना, या फिर कोई थर्मल पावर प्लांट है, तो वहां पे जो पावर प्लांट में जो हम हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, या जो वाटर में हीट, जो गर्म पानी रिजेक्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे जो ओशियंस हैं या फिर रिवर्स हैं उसमें जाकर के मिल रहा है। और वहां पर मास रेगुलरली एक तो सर्कुलेट हो रहा है ना, फ्लो कर रहा है, और उसका मास इतना ज्यादा होने की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसकी वजह से हम उसको थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड? बेसिकली थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दो तरीके से हम नाम दिया जाता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। सोर्स बेसिकली वो होता है जो हीट देता है। Source is a thermal energy reservoir which gives you heat without reducing its temperature. इसका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा, the temperature will remain constant and it will provide you heat also. And sink is a thermal energy reservoir which takes heat and without going into increase in temperature. ओके, ये सिंक का टेम्परेचर जो है बेसिकली इंक्रीज नहीं। सो हम इनको नाम से यूज करते हैं। सोर्स वो होता है जो हीट प्रोवाइड कराता है, सिंक वो बॉडी होती है जो हीट लेती है। जैसे ओशियंस है वो सिंक कहलाते हैं, ठीक है, और जो बॉयलर्स हैं वो सोर्स कहलाते हैं। क्लियर? नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड व्हाई वी नीड दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यों हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी, ये हम समझ चुके। उसके बाद हम ये समझ चुके कि हम थर्मल रिजर्वायर्स किसको बोलते हैं। नाउ कम्स टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी कई स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से दो साइंटिस्ट की स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, विच आर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट। सो सबसे पहले हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को समझते हैं। What statement says? First we read that and then we'll understood that. Statement says that it is impossible for any device that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work. Okay, so this is the statement. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम समझेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे कि ये स्टेटमेंट से का क्या मीनिंग निकलता है। सो इट इज इम्पॉसिबल मतलब यह इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो सकता, है ना। इम्पॉसिबल मतलब इट कैन नॉट बी डन फॉर अ डिवाइस, एक डिवाइस के लिए विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल। बेसिकली जो डिवाइसेस होती हैं वो साइकिल पे ऑपरेट करती हैं, और साइकिल क्या होती है? साइकिल बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के कोइंसाइड करती है ना, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के कोइंसाइड करती है। तो ऐसे प्रोसेस एग्जीक्यूशन को हम साइकिल का नाम देते हैं। तो वो डिवाइस जो एक साइकिल पे वर्क करे एंड रिसीव हीट्स, एक हीट लेगा, दिस डिवाइस विल टेक हीट, ये डिवाइस हीट लेगा फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर, सिर्फ एक रिजर्वायर से, एंड प्रोड्यूस नेट अमाउंट ऑफ वर्क, उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करेगा। सो ऐसी कोई डिवाइस नेचर में नहीं हो सकती जो कि ऐसा काम करे कि वो साइकिल पे ऑपरेट हो, किसी साइकिल पे वर्क करेगी और हीट को लेगी सिर्फ एक सिंगल सोर्स से, रिजर्वायर से, और नेट अमाउंट ऑफ वर्क आपको दे देगी। सो सपोज दिस इज अ सोर्स, ये कोई सोर्स है जो एक टी टेम्परेचर पे है, ठीक है, और ये हीट प्रोवाइड करेगी, ये हमने समझ लिया, है ना। और ये कोई डिवाइस है, लेट अस सपोज दिस इज अ डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहना है
कि ऐसी कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है बनाना जो एक साइकिल पे काम करे। ये जो सर्कल है ये किसका काम कर रहा है? साइकिल का, है ना। बेसिकली एक साइकिल पे काम करे और आपको क्या करे कि हीट ले फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, एक ही रिजर्वायर से हीट ले और उतना ही वर्क आपको प्रोड्यूस कर दे। क्लियर? तो ये डिवाइस क्या है? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई आकर के कहे कि मेरी एक डिवाइस है जो कि क्या करेगी, आप उसको हीट देना, आप उसको फ्यूल के टर्म में, या फिर सपोज आप पेट्रोल दे रहे हैं तो वो पेट्रोल के जलाने पे हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो हीट आपने उसको डिवाइस को दी और उस हीट का यूज करके वो आपको पूरा उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट आपको दे दे। ऐसी डिवाइस नेचर में इम्पॉसिबल है बनाना। दिस इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड? सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस that can operate on a cycle, very important term is cycle, to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work. So first law of thermodynamics के according अगर मैं इसको analysis करता हूं, so first law क्या कहता है? Suppose क्या था कि second law आपके पास नहीं था, है ना, और फर्स्ट लॉ आपको पता था। आपको कोई आकर के बोला कि मेरे पास एक डिवाइस है जो ऐसा काम कर रही है कि आप उसको हीट दो और वो आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट दे देगा। तो आपको क्या पता है कि एनर्जी बैलेंस के अकॉर्डिंग इट इज वैलिड। यस, इट कैन बी डन कि हीट बैलेंस तो हो जाएगा, है ना, क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आउट हो जाएगा। यस, कोई अगर आपको ये कहता कि वो डब्ल्यू आउट उससे भी ज्यादा दे देगा जितनी आपने हीट दी, तो वो तो क्या हो गया कि वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इनवैलिड हो गया। बट दिस स्टेटमेंट, दिस इज वैलिड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट सेकंड लॉ सेज दैट दिस इज इम्पॉसिबल। दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ऐसी कोई डिवाइस नहीं हो सकती जो आपको ऐसा दे दे। ठीक है? सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट के बेस पे बेसिकली क्या था कि कुछ जैसे जैसे हमारा स्कूटी, बाइक, गाड़ी, ये जो सब डिवाइसेस हैं ये भी एक डिवाइसेस है ना। सो ये जो डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं? ये बेसिकली फ्यूल की हीट को, फ्यूल की एनर्जी को यूज करके आपको वर्क आउटपुट देती है ना। आपकी गाड़ी चलती है तो वो क्या है? एक वर्क है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट हमें एक टर्म, एक उसको हम क्या बोलते हैं? हीट इंजन्स में कैटेगराइज करते हैं। सो हीट इंजन्स क्या होते हैं? बेसिकली हीट इंजन्स वो होते हैं जो हीट को एज अ इनपुट लें और आपको कन्वर्ट करके दे दें मैकेनिकल वर्क आउटपुट। ठीक है? सो ऐसे डिवाइसेस को हम हीट इंजन का नाम देते हैं। तो इसमें जैसे कि आपकी कार्स आ गई, इसमें आपके पावर प्लांट्स आ गए, है ना। पावर प्लांट्स में भी क्या है? आप क्या करते हैं? आप या तो स्टीम की एनर्जी को यूज करते हैं, जैसे हमने पहले एनालिसिस किए फर्स्ट लॉ में, है ना। टरबाइंस थे, है ना, तो वो जो है वो बेसिकली हीट इंजन्स में आते हैं। अब हीट इंजन का बेसिकली हमें पता है, वी नो दैट हीट, हमारी बाइक या हीट इंजन क्या करते हैं बेसिकली? सपोज आई एम टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ हीट इंजन, है ना। ये क्या करते हैं? हीट को लेते हैं, है ना, हीट को लेते हैं किसमें? बेसिकली एनर्जी जो हीट के फॉर्म में लेते हैं। और ये क्या होता है? सपोज अगर मैं एक सोर्स लूं जो कि एक हायर टेम्परेचर पे है, वहां से हीट को लिया, ओके, हीट को लेकर के दिस डिवाइस विल डू व्हाट? विल गिव यू सम वर्क आउटपुट, है ना। ये कुछ वर्क आउटपुट देंगे और कुछ हीट जो है वो एग्जॉस्ट के टर्म में रिजेक्ट करेंगे। ये हमें पता है। ये किसको करेंगे? सिंक को करेंगे। जैसे आपकी कार है उसमें एग्जॉस्ट लगा है, एग्जॉस्ट जो आपके साइलेंसर से जो एग्जॉस्ट गैसें रिजेक्ट हो रही हैं वो क्या है? बेसिकली दिस क्यू एल है ना। ये लोअर और कहां पे जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। एटमॉस्फेयर क्या है? आपका सिंक है, वो कितनी भी हीट आपकी ले रहा है ना, विदाउट गोइंग एनी मेजर टेम्परेचर डिफरेंस। उसमें मेजर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आ रहा है ना। और इतनी सारी बाइक्स चल भी रही हैं, कार्स भी चल रही हैं, है ना। सो बेसिकली ये एग्जांपल है उसका हीट इंजन का। ठीक है? सो ये क्या है? एक हीट इंजन है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ने ये कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल दैट फॉर अ डिवाइस
टू कन्वर्ट दिस QH इनटू इक्विवेलेंट W आउट। इसको हम इस तरीके भी से कह सकते हैं कि ये डिवाइस के लिए पॉसिबल नहीं कि आपको जितनी हीट आप उसको दो उतना ही वर्क आउटपुट दे दे। तो अगर मैं यहां पर इंजन की बात करूं तो हमें तो पता है कि हीट वो लेता है और कुछ वर्क आउटपुट देता है और कुछ हीट को रिजेक्ट करता है ना। और यही सेकंड लॉ का कहना है कि इट दिस डिवाइस इफ इट इज वर्किंग इन नेचर देन दिस हैज टू रिजेक्ट सम हीट। इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है ना। सो क्यू एच कैन नॉट बी इक्वल टू डब्ल्यू आउट ओनली, बट अगर मैं इसको सिस्टम लू, अगर मैं इसको हीट इंजन को सिस्टम लू और एनर्जी बैलेंस करूं तो नाउ दिस एनर्जी बैलेंस विल कम आउट टू बी क्यू एच विल इक्वल टू डब्ल्यू आउट प्लस क्यू एल। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये किसके बेस पे आया? ये बेसिकली फर्स्ट लॉ के बेस पे आया, है ना। ये डिवाइस नेचर में पहली एग्जिस्ट कर रही है, हीट इंजन है ना। और हमसे क्या कहा गया कि इम्पॉसिबल है कि आपको उतना ही वर्क आउटपुट मिल जाए, है ना। सो अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी क्या होता है? अगर मैं किसी भी चीज की एफिशिएंसी जानना चाहता हूं देन इट विल बी इक्वल टू दी वर्क आउटपुट जो आपको उससे मिल रहा है ना। जितना आपको उससे मिल रहा है डिवाइडेड बाय कितना आपने उसको दिया। आपने दिया क्या? हीट दी, तो हीट इनपुट, है ना भाई। एफिशिएंसी, किसी की भी एफिशिएंसी की बात करें तो वो यही होगी कि कितना उससे आपने प्राप्त किया और आपने कितना इनपुट उसको दिया था, है ना। तो यही उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखूं तो अगर ये पॉसिबल होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पॉसिबल होता कि Q विल बी इक्वल टू डब्ल्यू आउट, ऐसी कोई डिवाइस होती तो क्या होता? तो डब्ल्यू आउट विल इक्वल टू डिवाइड बाय क्यू एच, है ना। ये क्यू एच हो जाता और ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाता? इफ इफ इन व्हाट केस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू क्यू एच, अगर ये कंडीशन है तो क्या होता? ये कितनी हो जाती? 1। और या इसको मैं क्या बोल सकता हूं परसेंटेज के टर्म में? 100%। यस और नो? द एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन, ऑफ अ हीट इंजन, ये एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हो गया। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बिकम 100% इफ इट इज पॉसिबल, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है दैट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नॉट बी 100%. So this is also a statement of second law, that according to the second law, it is not possible to get 100% of efficiency from a device. Understand? So ये basically है, ये भी एक उसकी स्टेटमेंट ही कहलाती है। तो एफिशिएंसी, और ये एक बहुत जनरल सी बात है जो हम समझते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो कभी 100% नहीं हो सकती, है ना। दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 100%। 99 हो सकती है ना, 98 पहुंच सकती है, 97 पहुंच सकती है, बट इट कांट बी 100%। सो द हीट हैज टू बी रिजेक्टेड, हीट हैज टू बी रिजेक्टेड, है ना। क्यू एल हैज टू बी रिजेक्टेड, यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। सो दिस मीन्स द हीट इंजन मस्ट एग्जॉस्ट एक्सचेंज हीट विद लो टेम्परेचर सिंक्स, है ना। हमने देख लिया ना कि वो टेम्परेचर, उसको हीट को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा अगर उस डिवाइस को वर्क करना है ना। और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये भी कहता है कि कोई भी थर्मल एफिशिएंसी, इसको थर्मल एफिशिएंसी भी बोलते हैं, कोई भी हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी और एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी 100%। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस 100% ऑफ एफिशिएंसी इज नॉट ड्यू टू द फ्रिक्शन। हमने अभी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया, वी हैव नॉट कंसीडर्ड दिस फ्रिक्शन, we have considered that this heat engine is working with the free of friction. It can work on a frictionless process, है ना, आइडियल प्रोसेस पे वर्क कर सकता है, बट तब भी इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
देखिए ये स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा ही। पर यहां पर समझना जरूरी है दैट दिस एफिशिएंसी इज नॉट 100%, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ये फ्रिक्शन की वजह से नहीं है ना। दिस इज दी this is the basically criteria or condition because of the process which are occurring in nature are occurring in a certain direction. Okay, that is why it is very important why we need second law of thermodynamics. Understand? Now to go into the deep, why we have to reject heat. ठीक है, जैसे ही आपको मैं ये चीज समझा रहा हूं कि वी हैव टू रिजेक्ट इट, वी हैव टू रिजेक्ट इट, सेकंड लॉ सेज दिस, सेकंड लॉ सेज दिस, है ना। सो आपके दिमाग में आएगा व्हाई सर, व्हाई वी नीड टू रिजेक्ट इट। अगर हम इस रिजेक्टेड हीट को ना रिजेक्ट करें तो हमारा जो डिवाइस होगा वो एक 100% एफिशिएंसी वाला हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड क्रिएशन इन द वर्ल्ड, है ना। सो इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। अंडरस्टैंड? सो दिस इज फर्स्ट फिगर। इस फर्स्ट फिगर को देखेंगे, बाकी फिगर्स पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस फर्स्ट फिगर को देखेंगे। इसमें क्या है, बेसिकली हमने कंसिडर किया एक सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। उसमें कुछ गैस है जो कि इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस पे रखी गई। ये बेसिकली जो गैस है वो इनिशियली ऐसे है कि पिस्टन को एक स्टॉपर्स, ये क्या है, स्टॉपर्स है, ठीक है। इन स्टॉपर्स पे इस पिस्टन को रेस्ट किया गया है और इस पर एक लोड लगाया गया, दिस इज अ डब्ल्यू लोड, और एक स्टॉपर को इस पोजीशन पे अटैच किया गया। सो दिस पोजीशन इज मार्क्ड एज 1 एंड दिस इज एज 2। इनिशियली गैस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है और हमारे पास एक रिजर्वायर है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और हमने इस रिजर्वायर को, अगर ये रिजर्वायर है तो इससे हीट लें या दें, इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने इस रिजर्वायर से हीट को दिया गैस को, और ये जो बेसिकली दिस सिलेंडर इज इंसुलेटेड। इन व्हाट केस कि प्रोसेस अगर अकर करेगा तो यहां से जो हीट हो रही है वो गैस को ट्रांसफर होगी, उसके बाद ये इसकी इंटरनल एनर्जी और अनदर एनर्जीज के फॉर्म में जाएगी। उसको देखते हैं किस तरह से। देखिए, ये जो रिजर्वायर है इनिशियली गैस 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इस रिजर्वायर से सपोज हमने 100 किलो जूल ऑफ हीट इसको दी। सो हीट इज गिवन टू द गैस, सो हीट इज इनपुट टू द गैस, है ना। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया गया होगा तो प्रेशर इंक्रीज किया गया होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा तो इस पिस्टन पे गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, जिसकी वजह से ये पिस्टन मूव करने की कंडीशन में आएगी। जैसे ही ये पिस्टन के जो प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस है वो इस लोड और पिस्टन के वेट से ज्यादा हो जाएगा, ये पिस्टन मूव करना शुरू हो जाएगी। ये पिस्टन मूव करना शुरू हुई सपोज, और हमने जब 100 किलो जूल ऑफ हीट इसको गैस को दे दी, उस टाइम पे ये पिस्टन जो मूव हो करके इस पोजीशन पे पहुंच गई। अंडरस्टैंड? जैसे ही हमने इसको हीट दे दी तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया, और वो टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 90 डिग्री सेल्सियस, और पोजीशन पिस्टन की आ गई, वो कहां आ गई, यहां पर आ गई। अंडरस्टैंड? और इन दिस ड्यूरेशन heat given input is what, 100 kilojoule to the gas, and the gas temperature reaches to 90 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया, 90 हो गया। और पिस्टन और लोड के अगेंस्ट गैस ने कुछ वर्क किया होगा, है ना। तो ये जो एनर्जी गई होगी, एक तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में गई, यानी कि इंटरनल एनर्जी में गई, और एक कहां गई होगी, इसके इस वर्क को करने में गई होगी। तो वर्क सपोज करो कि लेट अस टेक इट एज 15 किलो जूल ऑफ वर्क इस पिस्टन के अगेंस्ट किया गया होगा गैस के द्वारा। अंडरस्टैंड? सो गैस ने कितना वर्क किया, 15 किलो जूल वर्क किया। सो अगर मैं एनर्जी बैलेंस की बात करूं तो क्या हुआ होगा, अभी इसके पास कितनी एनर्जी बची होगी, दिस हैव 85 किलो जूल ऑफ एनर्जी, विच इज बेसिकली द रीजन ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। सो एनर्जी बैलेंस के अकॉर्डिंग 85 ये हो गई, 15 ये हो गई, तो 100 जो हमने इसको दी थी वो ऐसे बैलेंस हो गई। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, सेकंड लॉ स्टेटमेंट कहती है सिर्फ रिजर्वायर एक हो। अंडरस्टैंड? रिजर्वायर सिर्फ एक हो, और अगर कोई ऐसी डिवाइस है
वो अगर उसकी एफिशिएंसी 100% चाहिए, अगर यहाँ पर एफिशिएंसी 100% चाहिए, तो वो साइकिल पे ऑपरेट होनी चाहिए, डिवाइस है तो साइकिल पे ऑपरेट होनी चाहिए। और साइकिल का मतलब क्या है, वो इनिशियल स्टेट पे आनी चाहिए। इनिशियल स्टेट क्या है, वो ये है। सो हमें पिस्टन को वापस यहाँ लाना पड़ेगा, या सुनो। सो वापस यहाँ लाने के लिए मुझे इसको इनिशियल स्टेट यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा, और 30 डिग्री सेल्सियस के लिए इससे हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा, या सुनो। सो वो रिजेक्ट मैं ना करके मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं कि अगेन इस रिजर्वायर को, जो रिजर्वायर हमारा था, जो रिजर्वायर से हमने हीट को इनपुट किया था, उसी रिजर्वायर को वापस ये 85 यूनिट ऑफ एनर्जी रिप्लेस कर देते हैं, और इसी को बाद में यूज कर लेंगे, है ना। तो ये 100% एफिशिएंसी दे देगा, या सुनो। कोई और रिजर्वायर तो है नहीं, हीट को रिजेक्ट नहीं किया, उसी हीट को हमने यूटिलाइज कर लिया, है ना। तो अब क्या ये पॉसिबल है, क्या ये जो मैंने बोला कि मैं 85 ऑफ किलो जूल एनर्जी, इसको इनिशियल स्टेट में लाने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए, 90 से 30 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस इस रिजर्वायर को दे देता हूं, और फिर इसी एनर्जी को यूज कर लूंगा, तो मुझे 100% एफिशिएंसी मिल जाएगी, यस और नो। सो ये जो 85 ऑफ एनर्जी जो है, क्या मैं इसको दे सकता हूं, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज नाउ व्हाट 90 डिग्री। अभी टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री, और देना किसको है, रिजर्वायर को, वो कितने पे है 100 डिग्री। तो क्या हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर हो सकती है, नो, इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो वो 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू इनिशियल स्टेट विथ सिंगल रिजर्वायर। सिंगल रिजर्वायर के होते हुए हम इनिशियल स्टेट पे नहीं आ सकते। इसका मतलब ये डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करती, ये डिवाइस पॉसिबल नहीं है बनाना। हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा रिजर्वायर लाना पड़ेगा जो कि 20 यानी कि कम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो, और हीट को रिजेक्ट करे 90 से 20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद ये हीट रिजेक्ट करने के बाद इसकी एफिशिएंसी जो, क्योंकि ये हीट क्या है, अब आपने कम डिग्री सेल्सियस ऑफ रिजर्वायर को दे दी है ना, इसका टेम्परेचर कितना है, कम है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये हीट को ले रहा है, ये क्या है, सिंक। तो नाउ यू हैव टू ऐड अनदर रिजर्वायर विच इज अ सिंक टू मेंटेन दिस डिवाइस, एंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस डिवाइस विल बिकम 85 डिवाइड बाय 100 which is equals to 15%। अंडरस्टैंड। सो दैट इज वाई इट, अभी हमने देखिए कहीं पे भी फ्रिक्शन की बात नहीं की, हमने नहीं कहा कि ये एनर्जी फ्रिक्शन में गई, हमने तो कहा उतना वर्क हमें मिला। बट टू वर्क ऑन अ डिवाइस फॉर अ साइकिल, एक डिवाइस को साइकिल पे वर्क करने के लिए अगेन उसी रिजर्वायर का अगर मैं यूज करूंगा तो मैं उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। आई हैव टू रिजेक्ट दिस हीट टू अ रिजर्वायर विच इज ऑन अ लोअर साइड टेम्परेचर, so that I can again proceed for other processes, है ना। तो मैं उस साइकिल को एग्जीक्यूट कर सकूं। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ heat engine to have another reservoir which is called sink, and we have to reject this heat. We cannot save, we can reduce एक। अब क्वेश्चन जो आएगा, अगर क्यू आउट को रिजेक्ट, जो रिजेक्ट हीट करते हैं उसको हम सेव नहीं कर सकते कंप्लीटली, तो हम उसका रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अंडरस्टैंड। सो एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन इंक्रीज। सो वी कैन रिड्यूस द क्यू आउट बट वी कैन नॉट सेव क्यू आउट। हम, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्यू रिजेक्शन को, या हम एक रिजर्वायर से हीट का इंटरेक्शन करें और साइकिल को ऑपरेट करें, ठीक है, या डिवाइस को ऑपरेट करें। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर 100% efficiency of a heat engine which is not possible in nature। Understand? So this is that is the explanation of Kelvin Planck statement। Understand? Now comes the second law of thermodynamics,
which is basically in turn the Clausius statement. क्लॉजियस ने एक क्लॉजियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बेसिकली पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस अगेन दैट ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइकिल, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट other than the transfer of heat from a lower temperature body to a higher temperature body. ओके, सो स्टेटमेंट ये कहती है। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं दैट इट इज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है कि हम एक डिवाइस बनाएं जो कि एक साइकिल पे काम करे एंड प्रोड्यूस करे कोई भी इफेक्ट, सॉरी, एक एक यह एक इम्पॉसिबल है कि एक डिवाइस हम बनाएं जो कि एक साइकिल पे ऑपरेट करे और वो आपको हीट ट्रांसफर करे लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी अदर इफेक्ट, नो अदर इफेक्ट। अंडरस्टैंड? इसको समझते हैं कैसे। देखिए, स्टेटमेंट कह रही है कि आपके पास दो एनर्जी रिजर्वायर्स हैं, एक डिवाइस है जो कि किसी साइकिल पे वर्क कर रही है। साइकिल को जानना जरूरी नहीं, अभी अभी ये जानना जरूरी है कि ये एक डिवाइस है और ये डिवाइस क्या कर रही है कि एक लोअर टेम्परेचर सिंक से या रिजर्वायर से एक हायर टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट को ट्रांसफर कर रही है। अंडरस्टैंड? अगर आपको कोई कहता है कि एक डिवाइस है जो लोअर टेम्परेचर से हीट लेकर के हायर टेम्परेचर को हीट दे रही है, ऐसी कोई डिवाइस इम्पॉसिबल है बनाना। ये स्टेटमेंट है क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक है, क्लॉजियस ने ये कहा कि ऐसी डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, व्हाट इज पॉसिबल? ये तो इम्पॉसिबल हो गया। सो व्हाट इज पॉसिबल? पॉसिबल क्या है? पॉसिबल तो ये है कि आप हीट को एक ऐसी डिवाइस बनाएं जो कि हीट को लेगी लोअर टेम्परेचर सिंक से, हीट को लोअर टेम्परेचर सिंक से लेकर हायर टेम्परेचर सोर्स को देगी, है ना, रिजर्वायर को देगी, और उसके लिए आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। सो ऐसी डिवाइस तो पॉसिबल है। ये क्या है? अदर इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अदर इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कि कोई एनर्जी इंटरेक्शन और कुछ एनर्जी इंटरेक्शन नहीं है ना? तो ये डिवाइस तो पॉसिबल है बट इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्लॉजियस स्टेटमेंट। और ये जनरली हमें पता भी है कि हीट को हम लोअर टेम्परेचर सोर्स से हायर टेम्परेचर सोर्स पे नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि लोअर टेम्परेचर सोर्स बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी को हीट देते हैं, लेकिन उस केस में वर्क को आपको इनपुट या फिर डिवाइस को वर्क इनपुट देना पड़ेगा। सो दैट इज द क्लॉजियस स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड? बेस्ड ऑन द क्लॉजियस स्टेटमेंट वी हैव वेरी गुड एग्जांपल्स। ये जनरल एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, आज तक देखते आए। वन इज रेफ्रिजरेटर एंड अदर वन इज हीट पंप। बेसिकली व्हाट इज, फर्स्ट वील टेक रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है? एज इन द पिक्चर आई हैव शोन, आपके घर में भी रेफ्रिजरेटर होगा जिसको आप फ्रिज भी बोलते हैं। उसका काम क्या है? उसका काम बेसिकली जो आपके पास जो इस रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? ये जो एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मेंटेन रखना, किसका? ऑफ वाटर और योर वेजिटेबल, है ना? जो भी सामान आप इसके अंदर रखते हैं उसका टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से लो मेंटेन करना हमारी रेफ्रिजरेटर का काम है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? देखो, ये आपकी लो टेम्परेचर सोर्स बॉडी यानी कि आपकी वेजिटेबल और वाटर, उससे हीट को लेता है ना? ये क्यों? यहाँ पे आपका इवेपोरेटर, ऊपर जहां पे फ्रीजर होता है, जहां पे बर्फ जमती है, उसको इवेपोरेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीट जो है वो लो टेम्परेचर बॉडी से ली जाती है, यानी कि आपकी वेजिटेबल और आपके वाटर जहां पे आप आइस फॉर्म कर रहे हैं उससे ली जाती है। उस हीट को बाहर कहां पे छोड़ा जाता है? एनवायरमेंट में, है ना? ये आपका एनवायरमेंट हो गया जहां पे आप हीट को रिजेक्ट करते हैं। ये क्या है? क्यू एच। ये हाँ, इस केस में आपको पता है, वी नो वेरी वेल दैट टी इंफिनिटी विच इज एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज मोर देन टी
लोअर और द टेम्परेचर ऑफ द वेजिटेबल। अगर मैं इसको वेजिटेबल से रिप्रेजेंट करूं तो ये टेम्परेचर है वेजिटेबल का, है ना। यही फ्रिज करता है। आपने देखे होंगे पीछे फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पे कुछ ऐसी ट्यूब सी लगी रहती है ना। इसको बेसिकली कंडेंसर कॉइल्स बोलते हैं, कंडेंसर कॉइल्स। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हीट रहती है ना। यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वो ज्यादा रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ की जो हीट है वो पीछे कंडेंसर में रिजेक्ट होती है ना। तो उसको बोलते हैं बेसिकली, इस एनवायरमेंट में जहां रिजेक्ट होती है इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली दिस इज व्हाट रेफ्रिजरेटर इज डूइंग, बट this is done when you are giving the electricity to the compressor। कंप्रेसर को कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ना ये। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वर्क इनपुट है फॉर दिस डिवाइस, है ना। तो सपोज मैं इसको लेता हूं इस तरह से, ये रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, और ये आपके रिजर्वायर्स हो गए। तो ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ये रेफ्रिजरेटर है जो एक साइकिल पे वर्क कर रहा है। अंडरस्टैंड? ये एक साइकिल पे वर्क कर रहा है, सॉरी। सो बेसिकली इट इज वर्किंग ऑन अ साइकिल। ये रेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेसिकली एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? साइकिल को। ठीक है। अब ये जो साइकिल पे वर्क कर रहा है, आपको पता है कि अगर ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हीट का इंटरेक्शन लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। और ये वर्क इनपुट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। सो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वही ये है। अगर आपको कोई कहे कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये हीट को ऐसे ट्रांसफर आपकी सब्जियों को ठंडा कर देगा, देन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डिवाइस इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट क्लॉजियस स्टेटमेंट सेज। सो अगर मैं यहां पर रेफ्रिजरेटर के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन लगाता हूं, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अंडरस्टैंड? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इसको एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? बेसिकली एनर्जी बैलेंस को करता है ना। और अगर मुझे एनर्जी बैलेंस करना है तो मुझे सिस्टम लेना पड़ेगा, और सिस्टम क्या है मेरा? रेफ्रिजरेटर, है ना। मैं तो रेफ्रिजरेटर को देख रहा हूं उसमें क्या हीट इंटरेक्शन हो रही है, हर सब्जी में नहीं, है ना। मुझे सिर्फ रेफ्रिजरेटर में हीट का इंटरेक्शन देखना है। तो उसने लो टेम्परेचर बॉडी, सारी बॉडी अगर मैं देख लूं, तो उस बॉडी से जो हीट को, टोटल हीट को लिया, है ना। तो मुझे क्या करना है? दी स्टडी स्टेट कंडीशंस के केस में द एनर्जी इनपुट टू दी विल बी इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, है ना। जितनी एनर्जी आ रही होगी उतनी एनर्जी जा रही होगी। तो इसको रेट फॉर्म में नहीं लेते, एनर्जी इनपुट विल बी इक्वल टू एनर्जी आउटपुट। तो जो एरोज सिस्टम की तरफ आ रहे हैं वो एनर्जी इनपुट है, जो एरोज सिस्टम से बाहर की तरफ जा रहे हैं वो एनर्जी आउटपुट है। तो एनर्जी इन क्या है? क्यूएल। फिर उसके बाद एनर्जी वर्क इनपुट के फॉर्म में है, लेकिन ये क्या होगी? negative. Why? Because work input to the system is negative. Now energy output के बराबर होगी। energy output will be what? QH again. Okay, sorry, this has to be energy input. So energy input अगर ले रहे हैं तो पॉजिटिव, पहले से ही हमने उसको इनपुट के केस में कंसिडर किया, है ना। सो दिस QH will be equals to what? QL plus W। ठीक है। सो ये क्या हुआ? ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारा एनालिसिस हुआ। ठीक है। सो जो एनर्जी जो रिजेक्ट हो रही है ना, जो बेसिकली सिस्टम से बाहर जा रही है, दैट विल बी इक्वल टू क्यूएल प्लस डब्ल्यू। यानी कि आपने जितना वर्क इनपुट दिया, है ना, ये वर्क इनपुट बेसिकली आपका जो हीट आपने यहां से एक्सट्रैक्ट की उसके समेशन के बराबर आप हीट को रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ देयर इज अ टर्म, एक जैसे जैसे एफिशिएंसी टर्म है इंजन्स की वर्किंग को बताने के लिए कि कितना एफिशिएंट आपका इंजन है, कितना एफिशिएंटली वो काम कर रहा है। उसी तरीके से इन डिवाइसेस रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप को कितना अच्छे से वर्क कर रहे हैं उसके लिए एक टर्म है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
इसको हम सीओपी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में इसको सीओपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली सीओपी ऑफ एनी डिवाइस ऑफ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, मैं किसी की भी बात करूं तो दिस विल बी इक्वल टू सीओपी विल बी इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। सो सीओपी कैसे डिफाइन की गई है? सीओपी बेसिकली डिफाइन की गई है डिजायर्ड इफेक्ट टू दी वर्क इनपुट, कि आपको कितना डिजायर्ड इफेक्ट मिला और कितना वर्क इनपुट है। अच्छा, डिजायर्ड इफेक्ट का क्या सेंस है? डिजायर्ड इफेक्ट का क्या मीनिंग है? डिजायर्ड इफेक्ट मींस कि आपकी डिजायर क्या है, आप क्या चाहते हैं। क्या आप ठंडा करना चाहते हैं? क्या आप टेम्परेचर को लो मेंटेन रखना चाहते हैं, या आप टेम्परेचर को हाई मेंटेन रखना चाहते हैं? रेफ्रिजरेटर के केस में टेम्परेचर लो मेंटेन किया जाता है ना, लो मेंटेन किया जाता है, लो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और हीट पंप के केस में हाई टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो जो दी heat related to the low temperature is desired effect for the case of refrigerator, and for the case of heat pump desired effect is high temperature heat, है ना। so basically that is high temperatures। तो रेफ्रिजरेटर के लिए अगर सीओपी की बात हम करें, अगर हम रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी लिखें, सीओपी फॉर अ रेफ्रिजरेटर, देन इट विल बी इक्वल टू QL divided by W in. Okay, so this is the COP. Now we'll understand the heat pump. Again heat pump क्या कर रहा है? बेसिकली जो हीट पंप है वो आपको हाई टेम्परेचर मेंटेन करके देता है। हाई टेम्परेचर मेंटेन करने का क्या कहां पे एप्लीकेशन है? जहां पे आपके ठंडे इलाके हैं, वेयर द टेम्परेचर इज लो, यू वांट टू मेंटेन हाई टेम्परेचर इन योर हाउस, है ना। आप अपने घर में टेम्परेचर को हाई रखना चाहते हैं, उसके लिए हीट पंप को यूज किया जाता है। तो हीट पंप बेसिकली क्या करता है? जो हीट है एनवायरमेंट में, वो बेसिकली ले करके, जो कि लो टेम्परेचर पे है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ बाहर क्या है, विंटर में टेम्परेचर जो है वो लो है, और हमें अंदर क्या मेंटेन करना है? हाई क्या करना है। तो ये जो डिवाइस है ये बेसिकली हीट पंप है। ये क्या कर रही है? यहां से हीट को लेकर के और कुछ वर्क इनपुट लेकर के इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आपको हीट प्रोड्यूस कर रही है, हीट दे रही है, और ये हीट आपके हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, सो देयर विल बी वर्क इनपुट टू दी हीट पंप। अगर वर्क इनपुट टू दी हीट पंप है तो इस केस में जो सीओपी बन जाती है हीट पंप की, that will become the desired effect is QH, because ये क्या करता है? हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्लियर, और डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। क्लियर है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है W in will be equals to what? That will be equals to QH minus QL। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे W in को यहाँ पे पुट कर दूं, देन इट विल बी QH माइनस QL। क्लियर? अब अगर हम इसको सॉल्व करें, देन इट बिकम 1 माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। सो दिस इज द COP ऑफ हीट पंप इन टर्म्स ऑफ हीट। क्लियर? So that is how the energy analysis or first law of analysis can be done, and the COP can be find out for the refrigerator and heat pump. Clear? Now please understand that till now what we have understood is basically the second law of thermodynamics. Why we need that? क्योंकि जो प्रोसेसेस है वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में ही प्रोसेस हो सकते हैं, ये हमने समझा। और वो डायरेक्शन क्या है वो सेकंड लॉ बताती है। सेकंड लॉ में केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आपको बताती है कि कोई भी ऐसी डिवाइस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो साइकिल पे वर्क करे। एक प्रोसेस पे नहीं, साइकिल पे वर्क करना जरूरी है, और उसमें आप सिंगल एनर्जी रिजर्वायर से हीट का इंटरेक्शन करें, या फिर आपका नेटवर्क आउटपुट विल बिकम इक्वल टू दी नेट हीट इनपुट, वो हो, है ना। वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर?
सो वो ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है। ये किसने बताया? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने बताया। तो केल्विन प्लांक ने अगर उसको और हम कंक्लूड करें या फिर उसको और एनालिसिस करें तो वो ये कहती है कि किसी भी डिवाइस की या हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% पॉसिबल नहीं है। उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया गया है। विदाउट फ्रिक्शन ही कंसीडर करें तब भी 100% एफिशिएंसी नहीं पा सकते। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये समझा कि जो हीट रिजेक्टेड है वो हीट को रिजेक्ट करना किसी भी डिवाइस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे ही हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? देन वी हैव अंडरस्टूड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द स्टेटमेंट ऑफ क्लॉजियस। और क्लॉजियस क्या कहता है? क्लॉजियस कहता है कि हीट का ट्रांसफर आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। कोई ऐसी डिवाइस नहीं प्रोड्यूस हो सकती जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को दे विदाउट एनी वर्क इनपुट। हम इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं विदाउट एनी वर्क इनपुट। ठीक है। सो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी, केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं हीट इंजन। देन अगेन क्लॉजियस के अकॉर्डिंग एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ठीक है। सो बेसिकली दे वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल। देन वी हैव अंडरस्टूड द सीओपी। सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की परफॉर्मेंस को बताती है कि कितना परफॉर्मेंस इनका है। और ये किसके बराबर होता है? डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट। डिजायर इफेक्ट बेसिकली क्या है? वो इफेक्ट है जो हम चाहते हैं। जो इफेक्ट हम चाहते हैं वही हमारी डिजायर्ड होगी। रेफ्रिजरेटर में हम लो टेम्परेचर चाहते हैं तो लो टेम्परेचर हीट होगी। हीट पंप में हम हीट हाई टेम्परेचर चाहते हैं तो हाई टेम्परेचर हीट होगी। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि जो एक्सपेरिमेंट, जो सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट्स है ना। उनका जो प्रूफ है वो बेसिकली एक जो एनवायरमेंट में अभी तक जितने भी एनालिसिस अगर आप और प्रोसेस को देखें, उनका एनालिसिस करें तो आप यही पाएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, टिल डेट। सो ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी तक कंक्लूड नहीं किए गए, ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए जो इन लॉ की स्टेटमेंट को, इन लॉस की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करें या फिर उनको रॉन्ग प्रूफ करें, है ना। सो दैट इज वाई टिल डेट नो एक्सपेरिमेंट हैज बीन कंडक्टेड दैट कॉन्ट्राडिक्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली यही उस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का प्रूफ है, सेल्फ प्रूफ है ना। अभी तक इनका कोई प्रूफ नहीं किया गया, है ना, कोई प्रूफ नहीं है, कोई मैथमेटिकली मैं आपको प्रूफ करके नहीं बता सकता हूं। बट जो स्टेटमेंट है उनका बेसिकली अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कंक्लूड हुआ है नेचर में, कहीं पर भी वर्ल्ड में, कि जो इन स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर दे, है ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि सेकंड लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट सेल्फ प्रूव्ड है फॉर इट्स वैलिडेशन। अंडरस्टैंड? सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बेसिकली इन डिवाइसेस के ऊपर सेकंड लॉ की एप्लीकेशन के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे और उस साइकिल्स को देखेंगे कौन सी ऐसी साइकिल है। अच्छा, आज आपको ये समझ आया होगा कि 100% एफिशिएंसी हम गेन नहीं कर सकते, लेकिन इससे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है, वो ये है कि अगर हम सेकंड लो हमें कहता है कि यू कैन नॉट गेट 100% एफिशिएंसी, तो क्या कोई ऐसी साइकिल है, क्योंकि हम हमेशा डिवाइस जो है वो किस पे वर्क कर रही है? साइकिल पे। दोनों स्टेटमेंट में आपने साइकिल वर्ड देखा होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कोई ऐसी साइकिल है जो ये बताती है कि इससे ज्यादा एफिशिएंसी आप गेन नहीं कर सकते अगर आप इन टेम्परेचर लिमिट्स में वर्क कर रहे हैं? अगर आप इन टेम्परेचर लिमिट्स में कोई डिवाइस वर्क कर रही है तो एक ऐसी साइकिल है, अगर वो साइकिल आप एग्जीक्यूट करें तो उससे ज्यादा एफिशिएंसी आप नहीं पा सकते। 100% तो पता चल गया मिल ही नहीं सकती, लेकिन मैक्सिमम कितनी मिल सकती है ना, बिटवीन टू टेम्परेचर्स लिमिट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है दिमाग में कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा कौन सी साइकिल है जो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी। सो दिस विल वी अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लास। सो please, if you feel any doubt in this lecture, you can comment below. We'll try to solve and clear your doubts जितना भी हमसे हो पाएगा, we'll clear it. Okay, and thank you for today's lecture. Thank you.